My lovely students, welcome to Logical. In this session, we'll be doing some more practice questions on quantitative aptitude section for ZAT examination. Start करते हैं session को. And if you've not already subscribed to our channel, make sure to subscribe to the channel और साथ में like the content, like this session as well. Or you can join Telegram channel Methodological and can message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of this session. Pause the video and try to solve it. Three positive integers a, b, and c are in arithmetic progression such that their sum is 15 if the numbers a plus 1, b plus 4, and c plus 19 form a geometric progression in that order. Then find the value of a square plus b square plus c square. So three positive integers a, b, and c are in arithmetic progression such that their sum is 15. Sum of a plus b plus c, that is equal to 15. Now since they are in arithmetic progression, the average will be the middle value. Isn't it so? Or we can say a will be b minus something, c will be b plus something. और वी कैन से कि सम क्या होगा हमारा इक्वल टू 3 भी होगा, या तो ऐसे ही दिख जाए तो बेस्ट है, बिकॉज देन वी नो कि b इज इक्वल टू 5. अदरवाइज a विल बी b माइनस समथिंग, c विल बी b प्लस समथिंग, सो टोटल सम विल बी 3b. बिकॉज इफ a इज इक्वल टू b माइनस x, c इज इक्वल टू b प्लस x, 3b माइनस x प्लस x, तो x कैंसल आउट, तो 3b इज इक्वल टू 15 एंड हेंस b इक्वल टू 5 आ गया. और जैसे ही b इक्वल टू 5 मिल गया तो जैसे मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5 minus x and c is equal to 5 plus x. And then a plus 1, b plus 4 and c plus 19, they are forming a geometric progression. So a plus 1 will be 6 minus x, b plus 4 will be 5 plus 4 which is 9, and c plus 19 will be 19 plus 5, 24 plus x. So these three are in geometric progression. And if three numbers are in geometric progression, the middle term whole squared is equal to यानी कि 9 whole squared, b plus 4 whole squared, this will be equal to a plus 1 into c plus 19, and hence 9 whole square 81 will be equal to 6 minus x into 24 plus x. अब या तो एक्सपेंड करके क्वाड्रेटिक बनाओ, अदरवाइज 80 बना रहा है और these are positive integers, तो क्या आप वैल्यूज आइडेंटिफाई नहीं कर लोगे? These must be 3 and 27, है कि नहीं? So either these are 3 and 27, और क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है? अगर x हमारा नेगेटिव हुआ, अगर x पॉजिटिव है तो these are definitely 3 and 27. 181 जैसा तो केस बन ही नहीं सकता. ऑल्सो 9 and 9 हो सकता है क्या? पॉसिबल है कि बोथ आर 9. सो x इज इक्वल माइनस 3 पे, नो नॉट पॉसिबल, बोथ कैन नॉट बी 9. सो और कोई वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, उसके लिए क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा. बट द पॉइंट इज कि 3 पॉसिबल इंटीजर्स है, क्योंकि गिवन ये नहीं है कि दीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये चीज़ मेंशन नहीं है यहाँ पे. सो दैट इज वाई सेकेंड सॉल्यूशन भी हमारा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? सेकेंड सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकता है, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा उसके केस में. अदरवाइज यहाँ से हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, x इज इक्वल टू 3 पे दिस विल बी 2, 5 एंड देन 8. ओके, क्लियर है? अगर क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 81 विल बी इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर minus 24x plus 6x, so minus 18x, and hence x square plus 18x minus 63, this is equal to 0. So plus 18 minus 63, यानी कि sum of roots is minus 18 and product is minus 63, so roots will be minus 21 and 3. So second value of x will be minus 21. So at x equal to minus 21, this will be 27 and this will be 3. Okay, so if 6 minus x is equal to 27, x is equal to कितना आ रहा है हमारा? minus 21 आ रहा है. x over minus 21, this will be 26, this will be 5 and this will be minus 16. So definitely one number is c is not positive, so that is why second solution will not be accepted. तो हमारा एक ही solution accept होगा, that is 2, 5 and 8. Clear है? And hence a square plus b square plus c square will be 2 square plus 5 square plus 8 square. So that will be 4 plus 25 plus 64. So 68 plus 25, that is 93. अच्छा, एग्जाम कंडीशंस में क्योंकि ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं और कहीं के भी ऑप्शन कैन नॉट डिटरमाइन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली एक यूनिक आंसर ही आएगा. तो जो हमें आंसर मिल गया है उतना ही सफिशिएंट होता. ठीक है, ये एडिशनल तो अभी हमने समझने के लिए किया, बट एग्जाम में यू विल नॉट बी डूइंग दिस एडिशनल प्रोसेस. जैसे ही तुम्हें 327 मिल गया, यानी कि जैसे तुमने सॉल्व कर लिया कि यस दिस विल बी 327 फॉर श्योर, इसका तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन मेंशन नहीं है.
none of these mention नहीं है, cannot be determined mention नहीं है, यानी कि data is sufficient and we will be getting a unique solution only, जो कि हमें अल्टीमेटली मिल भी रहा है, बट इतना आइडेंटिफाई पहले ही हो गया तो हमारे लिए फिर आगे का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. Next one, the roots of the polynomial px is equal to x cube minus 12x square plus 47x minus 60 that represents the length of the sides of a triangle ABC. यानी कि roots of the polynomial are representing lengths of the sides of a triangle. What is the ratio of the circumradius to the in radius of triangle ABC? क्या होगा वैल्यू? तो px is equal to x cube minus 12x square plus 47x minus 60. Now in case of a cubic polynomial, जैसे हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, लेट अस से रूट्स आर ए बी एंड सी, तो इफ पी एक्स इज इक्वल टू, ये क्वाड्रिक, ये हमारा क्वाड्रिक बोल रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1, सो वी कैन राइट इफ रूट्स आर ए बी सी, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी. दिस मस्ट बी अवर पॉलिनोमियल. नाउ इफ यू आर एक्सपेंडिंग दिस, सो दिस बिकम्स एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम्स एक्स माइनस ए बी सी. ओके, अपने एंड पे एक बार अगर अभी तक नहीं देखा है, फंडा नहीं क्लियर है, तो एक बार अपने एंड पे एक्सपेंड करके इसको चेकआउट कर लो. ओके, सो नाउ इफ यू कंपेयर द कोफिशिएंट्स, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12. सिमिलरली माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू माइनस 60, यानी कि a बी सी दैट इज इक्वल टू 60 एंड a b प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 47. और इन जनरल जब भी हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल मेंशन होगा, सो दैट कैन बी एज एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, दिस वे विल बी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट. अब क्योंकि वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ पे 12, 60, 47 इंटीजर वैल्यूज आ रही है, तो हिट एंड ट्रायल कर सकते हो. 60 आ रहा है वैल्यू, a इंटू बी इंटू सी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 60 एंड 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 30, यानी 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. अब क्या वैल्यूज ब्रेक कर सकते हो जहाँ से कि सम हमारा 12 आए? फॉर 2 इंटू 2 3 5, तो 5 3 4, 5 3 4 विल बी 12. यस, तो 4 3 एंड 5 इज वन ऑफ द पॉसिबल केस. अब चेक आउट करते हैं कि यहाँ पे 47 वैल्यू आ रहा है. 4 3 और 5 के पेयर्स बनाओ, तो 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, so this is 12 plus 20 32 plus 15 47. So yes, this is matching, and definitely side lengths are 3 4 and 5. Side lengths of the triangle ABC are 3 4 and 5, and 3 4 and 5 is a Pythagorean triplet, यानी कि right angle triangle form हो रहा है. So this is a, एक second, okay, so this is a right angle triangle with side lengths 3 4 and 5, and we need ratio of circumradius to the in radius of the triangle ABC. Now in case of a right angle triangle, circumradius is equal to hypotenuse divided by 2. So if we represent circumradius by capital R, so that is equal to hypotenuse divided by 2. So that will be equal to 5 by 2. And in radius, if we represent that with small r, so that is equal to other sides. If sides are A, B and H, so sum of other sides, यानी कि A plus B minus H divided by 2. So 4 plus 3 minus 5 divided by 2, and that is equal to 1. So ratio of capital R is to small r, that will be equal to 5 by 2 is to 1, and hence equal to 5 is to 2. ओके, अदरवाइज इन अदर केसेस, अगर बाकी केसेस में हमें सॉल्यूशन चाहिए होता तो यू विल बी कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल that has many formulas. One formula is 1 by 2 into base into height. The other formula is Heron's formula, square root of s, where s is semi-perimeter into s minus a into s minus b into s minus c. Another formula is in radius multiplied by semi-perimeter. So you can calculate the in radius by this formula as well. Another formula is a into b into c, product of all these three sides divided by 4 times capital R, where capital R is circumradius. So these are the formulas. 1 by 2 into b into h, square root of s into s minus a into s minus b into s minus c, and r into s
ए बी सी अपॉन 4r। अनदर फॉर्मूला इज कि जब हमें दो साइड्स का लेंथ गिवन है, फॉर एग्जांपल ए और बी साइड्स का लेंथ गिवन है, उनके बीच का एंगल इज थीटा, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/2 ए बी साइन थीटा। तो दीज आर फॉर्मूलाज जिसकी भी जरूरत पड़े जहां पे। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Next question. A car travels from point A to point B at a constant speed of s km per hour. If the speed is increased by 10 km per hour, the travel time decreases by 1 hour. If the speed is further increased by another 10 km per hour, the travel time decreases by additional 45 minutes. So what is the distance AB in kilometers? Distance AB kilometers में क्या होगा? So if we first apply conventional approach, so we know कि car is traveling from point A to B and the constant speed is s. So let us say it is taking t time. तो AB distance will be equal to s into t. And in the second scenario क्या हो रहा है, स्पीड को हमने इंक्रीज किया है 10 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि नाउ द स्पीड इज s plus 10. टाइम टेकन इज रिड्यूस बाई 1 आवर, तो टाइम टेकन हो जाएगा t minus 1. s into t is equal to s plus 10 into t minus 1. st is equal to s into t minus s plus 10t minus 10. So s into t gets cancelled out and hence this becomes 10t minus s is equal to 10. This becomes our first equation. Similarly, second time, if we further increase the speed by 10 km per hour, and if now speed becomes s plus 20, time will further decrease by 45 minutes. यानी अब टाइम कितने से डिक्रीज होगा? अगर इनिशियली टाइम t था तो नाउ टाइम विल बी t minus 1.75. अगेन इक्वेट दिस s into t, बिकॉज वहां पे चीजें ज्यादा आसान होंगी. ठीक है, तो s into t. सो अगेन एक्सपेंड द राइट हैंड साइड, तो s into t minus 1.75 times s plus 20t minus 20 into 1.75 which will be equal to क्या होगा? 10, so तो 2 into 17.5 35 हो जाएगा. S into t gets cancelled out, so again this becomes 20t minus 1.75s. This is equal to 35. This is our second equation. Now we can find out s by first equation. If we multiply by 2, the first equation becomes 20t minus 2s is equal to 20, और सेकेंड इक्वेशन हमारा है 20t minus 1.75s is equal to 35. Now second minus 2 times the first, this becomes equal to, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा? दिस विल बी 0.25s is equal to 15 and hence s will be equal to 15 into 4, 60 km per hour. Speed comes out to be 60 km per hour. So now from speed you can find out time, value of time. So time will be equal to, किसी में ही पुट कर दो, किसी इक्वेशन पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 10t minus 60 is equal to 10, तो 10t is 70, यानी कि t is equal to 7 आ गया. Now as is 60, t is 7, so distance will be equal to 60 into 7 and hence equal to 420 kilometer. This will be the answer. Distance will be equal to 420 kilometer. Now this is one way to solve it conventionally. Second way could be कि हमें यहाँ पे क्या गिवन है, डायरेक्टली हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है. डायरेक्टली वी डू नॉट नो वैल्यू ऑफ s प्लस 10, वैल्यू ऑफ t माइनस 1, कोई भी वैल्यू हमें पता नहीं है. तो ऐसे केसेस में यू कैन अप्लाई अ फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड्स डेल्टा s मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ टाइम्स डेल्टा t. ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 इंटू s2 बाई डेल्टा s इंटू डेल्टा t, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डिस्टेंस इज इक्वल टू t1 इंटू t2 डिवाइड बाई डेल्टा t इंटू डेल्टा s. ठीक है, जिस केस में जो फॉर्मूला यूज हो. नाउ इन दिस केस बेटर फॉर्मूला विल बी s1 इंटू s2 बाई डेल्टा s इंटू डेल्टा t. ठीक है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 s2 बाई डेल्टा s इंटू डेल्टा t. अब याद रखने का फॉर्मूला तरीका क्या है? देखो हमें क्या चाहिए, हमारा डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. ठीक है, सो t की जगह डेल्टा t यूज कर रहे हैं हम. सो s1 इंटू s2 बाई डेल्टा s आएगा. डेल्टा s नीचे क्यों आएगा? बिकॉज ऊपर वी आर हैविंग डायमेंशंस 2 टाइम्स स्पीड, तो स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पीड करोगे तभी तो स्पीड मिलेगा अल्टीमेटली. डायमेंशन तो सेम ही रहेगा डिस्टेंस का ना, तो डायमेंशन को ध्यान रखोगे तो फॉर्मूला याद रखना आसान होगा. ठीक है, कि स्पीड इनटू टाइम है, तो डेफिनेटली इफ टाइम इज कमिंग ट्वाइस इन द न्यूमरेटर, तो टाइम को एक बार डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें. तो t1 इंटू t2 बाई डेल्टा t इंटू डेल्टा s. ओके, सिमिलरली इफ यू आर हैविंग स्पीड इन न्यूमरेटर ट्वाइस, तो s1 इंटू s2 तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बाई डेल्टा s मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा t. एनीवे, सो डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस क्या होगा,
फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में हमारा अगर हम लेंगे तो s था, s से s प्लस 10 किया तो हमारा टाइम डिक्रीज बाई 1 आवर, तो s1 इंटू s2, s1 इज इक्वल टू s, s2 विल बी s प्लस 10, डेल्टा s डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स क्या है 10 है, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा t विच इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है, साइन की जरूरत नहीं है, 1 आवर का फर्क आया, 1 आवर का डिफरेंस आया, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इन द सेकंड केस अगर हमने स्पीड को फिर से फर्दर 10 से इंक्रीज किया, यानी कि स्पीड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम s टू s प्लस 20, तो टू स्पीड्स आर s एंड s प्लस 20, डिफरेंस इज 20 मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डिफरेंस कितना है, फर्दर 45 मिनट्स, यानी कि 1 आवर 45 मिनट्स विच इज 7/4 आवर, s gets cancelled out, 2 is remaining, so s plus 10 upon s plus 20, this is equal to 7/8. Now either solve it simply or observe that the difference is of 1 unit and here the difference is of 10 km per hour. If 1 unit is equal to 10 km per hour, तो s plus 10 will equal to 70. अगर 1 unit हमारा 10 km per hour के बराबर, so this is basically 70/80. s plus 10 is equal to 70, s is equal to 60. And if s is equal to 60, put in any value, so d will be equal to 60 into 70 by 10 into 1 and hence equal to 420 km. This will be the answer. क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन, अ सोप मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस्ड bathing and washing soaps in the ratio 2:3. Cost of production per bathing soap and washing soap is rupees 70 and rupees 50 respectively. He sold washing soaps at 20% profit, bathing soaps at P% profit and made an overall profit of 18%. If he increases the production of bathing soaps by 20% and changes the selling price of bathing soaps such that the overall profit remains 18%, so what should be the new approximate profit percentage on selling bathing soaps? तो अब बाथिंग सोप्स को सेल करने पे क्या अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ को? हमें इनिशियली बाथिंग सोप्स का प्रॉफिट परसेंटेज मेंशन नहीं है, P% प्रॉफिट इज गिवन, ठीक है। फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली ही इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ बाथिंग सोप्स बाय 20%, यानी कि बाथिंग सोप का प्रोडक्शन तो इंक्रीज किया है बट वॉशिंग सोप का प्रोडक्शन इज सेम, ओके। सिमिलरली since ultimately overall profit is still 18%, so he is also increasing the selling price of bathing soaps, but he is not increasing selling price of washing soaps. तो वॉशिंग सोप्स का सेलिंग प्राइस तो सेम ही है और प्रॉफिट भी वॉशिंग सोप पे 20% पहले भी था, अभी भी वही है। बाथिंग सोप्स का सेलिंग प्राइस क्यों चेंज किया है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज चेंज किया है, सो दैट हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। सो इन दिस केस एज सच वी डू नॉट नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पी। क्यों पी की वैल्यू की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो फाइनल रेशियो ऑफ बाथिंग सोप एंड वॉशिंग सोप, वी ऑल्सो नो फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ वॉशिंग सोप इज 20%, ठीक है। वी डू नॉट नो फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन बाथिंग सोप, okay, so that we have to find out because overall profit percentage is also known, so we do not need to find out value of p in this case। क्या ये बात क्लियर है कि वहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, ठीक है। सो अल्टीमेटली एक बार देख लेंगे क्या वैल्यू आएगा, बट दैट इज नॉट नीडेड फॉर द क्वेश्चन। सो फाइनली फॉर बाथिंग सोप एंड वॉशिंग सोप ऑर्डर का ध्यान रखना, बिकॉज समटाइम्स वैल्यूज आर सम केसेस रिटर्न इन डिफरेंट ऑर्डर। तो बाथिंग सोप और वॉशिंग सोप का इनिशियल रेशियो वाज 2:3, दिस इज इनिशियल रेशियो, बट फाइनली वी आर इंक्रीजिंग the production of bathing soaps by 20%, यानी कि now the bathing soaps are being produced plus 20% कर दो, so that will be 2.4, the ratio is 2.4:3, decimal हटा, 24:30, यानी कि final ratio is 4:5, so this is our final ratio, this was initial ratio of production quantity and this is final ratio which matters for us, so 4:5 is the ratio, okay, clear? Additionally, cost of production remains same, so that is rupees 70 and rupees 50 for bathing and washing, so 70 and 50, that is our cost of production, okay। And so if 4 bathing soaps are produced, 5 washing soaps are produced, तो cost क्या आ जाएगा? For bathing soaps cost will be, because this is number, this is cost, तो cost will be 280 and for washing soaps cost will be 250, अब या तो 28 25 ले 280 250 रखो। अब in this we know कि washing soaps are sold at 20% profit initially as well as finally, because that profit is not changing, because selling price as well as cost remains same for सॉरी वॉशिंग सोप के लिए हो रहा है ना, वॉशिंग सोप का हमारा प्रॉफिट है 20%, हाँ। तो वॉशिंग सोप के लिए फाइनली ऑल्सो 20% प्रॉफिट इज देयर, तो 20% प्रॉफिट इज स्टिल फाइनली एंड हिज प्रॉफिट विल बी 250 का 20% विच विल बी इक्वल 50 रुपीज 50 यूनिट्स, और ओवरऑल कॉस्ट इज 280 प्लस 250 टोटल कॉस्ट,
दैट इज 530 एंड ओवरऑल प्रॉफिट इज 18%. तो 18% ऑफ 530, तो 5.3 into 18, 18 5 is 90, 95.4. The total profit comes out to be 95.4. And profit on washing soaps is 50. So profit on bathing soaps will be difference of these. So 95.4 minus 50, that will be 45.4. बस प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना क्या होगा, तो 45.4 by 280 into 100. जीरो से गया जीरो, 10 यहाँ पे आएगा तो डेसिमल चला जाएगा, तो 454 by 28 विच विल बिकम 227 by 14. 7 का मल्टीपल तो है नहीं, तो 14 1 जार 14, बचा 87, 14 6 जार 84 and 3 by 14, 16 and 3 by 14. So roughly this will be 1 by 14 is 7%, yeah, 0.07 to 0.21, 16.21%. Option C will be the answer. Clear? आंसर आ जाएगा हमारा 16.21% in this case. Okay. ठीक है, अगर इनिशियल वैल्यू निकालनी होती तो वो भी सेम लॉजिक से निकालते कि हमारा बाथिंग एंड वॉशिंग का रेशियो इज 2:3, प्राइस इज 70/50, कॉस्ट इज 140:150, टोटल कॉस्ट इज 290, टोटल प्रॉफिट इज 18%. तो 290 का 18% विल बी 2.9 into 18, 18 3s are 18 3s are 54 minus 1.8, तो 52.2 ये तो आएगा. ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ सही तो है, 52.2 होगा. और इन वॉशिंग सोप्स प्रॉफिट इज 20%, दैट इज इक्वल टू 30. सो प्रॉफिट ऑन बाथिंग सोप्स विल बी 52.2 minus 30 and 22.2. बस परसेंटेज निकाल लोगे, 22.2 140 का कितना परसेंट होगा, तो 22.2 by 140 into 100, which becomes 5/7 and hence 111 by 7. So this will be 7 1 7, फिर बचा 41, तो roughly 15 and 6/7%. This will be our answer for value of P. बट P की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी नहीं है तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट अवे आ जाएगा. ओके, सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट, a tank contains 384 liters mixture of milk and water in the ratio of 15:17. 384 liters मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का और रेशियो कितना है 15:17, यानी कि यहाँ से वी कैन फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इंडिविजुअली. इफ x liters of mixture is taken out and x minus 14 liters of milk and x minus 34 liters of water added in the remaining mixture, so ratio of milk and water becomes equal. To find the quantity of milk in original mixture is what percentage of total final mixture. So initially milk and water are in the ratio 15:17 and total quantity will be 32 units, which is actually equal to 384 liters. तो 32 से सिंप्लीफाई कर लो, 32 1s are 12 टाइम्स जा रहा है, तो यानी कि मिल्क विल बी 15/12 एंड वाटर विल बी 17/12. तो मिल्क विल बी 180 liters and water will be 204 liters. 180 and 204 liters milk and water initially. Now x liters mixture has been removed. So if x liters mixture has been removed, तो मिल्क कितना रिमूव होगा भाई, मिल्क एंड वाटर का प्रोपोर्शन इनिशियली 15:17, यानी कि मिल्क रिमूव विल बी -15x by 32 and water removed will be -17x by 32. And then additionally we are adding x minus 14 liters of milk and x minus 34 liters of water, यानी कि we are adding x minus 34 liters of milk and similarly x minus 34 liters of water. बट यहाँ पे x में कैलकुलेशन करोगे ना तो कैलकुलेशन तुम्हारी टिपिकल रहेगी, बिकॉज फ्रैक्शन में ही वैल्यू आ रहा है. तो बेटर अप्रोच विल बी कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑन एक्स एज्यूम कर लो, क्योंकि डिवाइड बाई 32 कर रहे हो, तो लेट अस एज्यूम कि x इज इक्वल टू सम 32 टाइम्स a. 32 का मल्टीपल है ये मान लेते हैं, और जैसे ही ये मान लोगे तो फिर चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, बिकॉज 32 चला जाएगा फिर अपना डिनोमिनेटर में से. दिस बिकम्स -15 है, दिस विल बिकम -17 है. एंड सिमिलरली replace this x with 32a on both sides. तो कितना मिल गया 180 minus 15 है plus 32, यानी 180 plus 17 है minus 34. 180 minus 34 will be 146
प्लस 17a एंड सिमिलरली वाटर कितना होगा 204 माइनस 34 170 माइनस 17a और प्लस 32 है तो प्लस 15 है 170 प्लस 15 है एंड दीज टू आर इक्वल। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है हमने 180 माइनस 34 नहीं है 180 माइनस 14 है तो दिस बिकम 166 हो जाएगा इफेक्टिवली 166 प्लस 17a इज इक्वल टू 170 प्लस 15 है बिकॉज मिल्क एंड वाटर फाइनली आर इक्वल इन द रिमेनिंग मिक्सचर सो यहाँ से विल बी गेटिंग 2a is equal to 4 and hence a is equal to 2 and if a is equal to 2 x will be equal to 64 liters. So initially we remove 64 liters of mixture. We have to find out quantity of milk in the original mixture is what percent of total final mixture. तो total final mixture कितना आ रहा है हमारा since milk and water both are equal तो कोई भी एक निकाल लो तो milk will be equal to 166 plus 34 यानी कि 200 liters is milk and 200 liters is water तो total mixture is 400 liters और initially our milk was 180 liters तो 180 by 400 will be 180 by 4 which is equal to 45%. Option C is the answer. क्लियर है ठीक है आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है नो यहाँ पे तो देखो रेशियो इक्वल था अगर कोई और वैल्यू होती तब तो फिर ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता बट इक्वल के केस में एक और चीज देख सकते हैं देखो इनिशियली हमारा मिल्क एंड वाटर वॉज 180:204 देखिए डिफरेंस इनिशियली वॉज ऑफ 24 लीटर्स क्योंकि ये तो एक्चुअल वैल्यूज है दीज आर एक्चुअल वैल्यूज तो 24 लीटर्स का डिफरेंस वॉज देयर बट फाइनली दीज टू बिकम इक्वल है कि नहीं फाइनली मिल्क एंड वाटर बिकम इक्वल देखिए देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर ओके वी आर रिमूविंग सम क्वांटिटी और उसके बाद में कुछ ऐड कर रहे हैं कुछ तो हम रिमूव कर रहे हैं एंड आफ्टर विथ दैट वी आर एडिंग समथिंग तो वी आर एडिंग x minus 14 liters of milk and x minus 34 liters of water okay x minus 14 milk is being added x minus 34 water is being added तो मिल्क और वाटर में डिफरेंस कितना है जो हम ऐड कर रहे हैं वी आर एडिंग x minus 14 मिल्क एंड x minus 34 which is x minus 14 minus 20 water being added is 20 liters lesser so 20 liters lesser water is being added in comparison to milk water already 24 liters ज़्यादा था and we are adding only 20 liters lesser water है कि नहीं तो अगर हमने कुछ भी रिमूव नहीं किया होता and we finally needed milk and water equal if initially milk and water was 180:204 and finally अगर हमें ultimately milk और water equal चाहिए होता तो हम जो भी quantities को ऐड करते ultimately think about it जो भी हम quantities ऐड करते whatever quantities have been added definitely water should have been 24 liters lesser isn't it so तभी तो इक्वल हो पाते कुछ भी क्वांटिटी ऐड करते फॉर एग्जांपल इफ यू हैड एडेड 40 लीटर्स मिल्क इन दैट केस वाटर शुड हैव बीन अगर 40 लीटर्स तुमने मिल्क ऐड किया होता 180:204 तो इफ यू आर एडिंग 40 लीटर्स मिल्क देन यू शुड हैव एडेड ओनली 16 लीटर्स ऑफ वाटर देन ओनली बोथ विल बी इक्वल isn't it so नहीं 24 लीटर से डिफरेंस होता है अब यहाँ पे एडिशन में हम देख रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 20 लीटर्स ओनली so that implies कि after removal of x liters of mixture the difference must have been 20 liters only क्या ये बात समझ पा रहे हो पॉज फॉर अ मोमेंट थिंक अबाउट इट क्योंकि अल्टीमेटली वी आर ओनली एडिंग 20 liters more milk so that implies कि water must have been 20 liters more after removal और डिफरेंस इनका आ रहा है 24 का बट आफ्टर रिमूवल द डिफरेंस बिकम्स 20 ओनली तो रिमूवल भी तो क्या है सेम ही रेशियो में हुआ होगा तो अगर आफ्टर रिमूवल 20 लीटर्स का ही डिफरेंस आ रहा है तो दैट इंप्लाइज कि 1/6 ही रिमूवल होगा आउट ऑफ 24 से 20 हो गया डिफरेंस यानी कि 1/6 का रिमूवल हो गया अगर हमारा डिफरेंस 24 से 20 हो गया तो हमारा रिमूवल कितना होगा 1/6 का रिमूवल होगा तो बस 1/6 को रिमूव कर दो सो माइनस 1/6 मिक्सचर यानी कि दिस विल बी 150 ओनली रिमेनिंग 150 ओनली एंड दिस विल बी इक्वल टू अब इसकी भी क्वांटिटी निकाल लोगे कितना आ जाएगा सो 1/6 रिमूव करना है सो 1/6 कितना आएगा इसका 34 170 ना 150 इस टू 170 20 का डिफरेंस आ गया ऐड करोगे 20 टेस्ट लेसर ऐड करोगे चीज़ें इक्वल हो जाएंगी क्या ये क्लियर ओके ठीक है और x की वैल्यू फाइंड आउट करना था तो यहाँ पे हमने रिमूव किया कितना 30 ये रिमूव किया 34 तो x विल बी इक्वल 30 प्लस 34 विच इज इक्वल टू 64
तो अल्टीमेटली तुम्हें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी और सॉल्व कर पाओगे। ओके, क्या इंट्यूशन क्लियर है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इन बातों को? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कास्क कंटेन्स 100 liters of pure wine. Operation A is removing 10 liters of mixture and replacing with water. Operation B is removing 20 liters of mixture and replacing with water. And Operation C is removing 10 liters of the mixture and replacing with 10 liters of pure wine. If the sequence of operations performed in is A, then B, then C, then what is the final ratio of wine to water? Wine to water का final ratio क्या होगा? Pause the video and solve it. So in the first operation, we are removing 10 liters of the mixture. Initially हमारे पास pure wine है. So we are removing 10 liters and replacing it with water. ओके, तो इनिशियली वी हैव प्योर वाइन, तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या आएगा? देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, इन द फर्स्ट टू ऑपरेशंस वी आर रिमूविंग मिक्सचर एंड रिप्लेसिंग इट विद वाटर. ऑपरेशन बी ऑल्सो रिमूविंग मिक्सचर एंड रिप्लेसिंग इट विद वाटर. बट इन द थर्ड वी आर रिमूविंग मिक्सचर बट रिप्लेसिंग इट विद प्योर वाइन. तो दैट इज द डिफरेंस. क्योंकि हमेशा जब भी हम रिमूवल रिप्लेसमेंट वाली चीज है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम, वी आर रिप्लेसिंग ओनली. ठीक है, सो द रिप्लेसमेंट इन ऑल केसेस ऑफ रिप्लेसमेंट we will be doing calculation on that quantity which is not being added finally. So in first two operations, operations A and B, we are adding water, but in operation C we are adding pure wine. So we'll be doing separate calculation for first two operations and then for third operation. ये गलती नहीं करना कि थर्ड ऑपरेशन को भी साथ में ही कर दिया, अदरवाइज तुम्हारा जो आंसर है दैट विल बी रॉन्ग, completely wrong. Clear? तो A and B should be calculated first. Because in A and B we are replacing with water, we are not adding water finally, but in C we are adding wine finally. तो C वाले को बाद में करेंगे, पहले A और B से अपना रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद में विल बी डूइंग कैलकुलेशन ऑन ऑपरेशन C. तो फॉर A and B इनिशियली वी हैव प्योर वाइन. तो वाइन बाई टोटल फाइनल कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू वाइन बाई टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई रिप्लेसमेंट फैक्टर, लेट अस से K1 या KA फॉर फर्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाई रिप्लेसमेंट फैक्टर फॉर KB फॉर सेकंड ऑपरेशन. ओके, तो इनिशियली तो हमारा वाइन बाई टोटल इज इक्वल टू वन ओनली बिकॉज प्योर वाइन है, मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट केस में रिप्लेसमेंट फैक्टर कितना होगा, वी आर रिमूविंग 10 liters आउट ऑफ 100, तो 10 इज रिमूव्ड बाई आउट ऑफ 100, यानी कि 1/10 इज रिमूव्ड, तो रिमेनिंग विल बी 9/10. इन ऑपरेशन बी वी आर रिमूविंग 20 आउट ऑफ 100, सो रिमेनिंग विल बी 4/5. सो फाइनल कंसिडरेशन विल बी 36/50, विच इज 18/25. तो 18 विल बी वाइन, 25 इज टोटल. तो if total is 25, wine is 18, तो water must be 7. तो 18:7 का ratio is there for wine and water. Okay. Now for operation C, we are replacing with wine. So calculation हम किस पे करेंगे? Water पे calculation करेंगे. So water by total final concentration will be equal to water by total initial multiplied by replacement factor for operation C. तो water by total initial is 7/25 multiplied by कितना रिप्लेस करें 10 liters out of 100, तो that will be 9/10. तो 9 7 63 by 250. तो water finally is 63 out of total 250. तो ratio of wine to water पूछा है. So if water is 63 out of 250, so wine will be 250 minus 63 and hence 187. So answer will be 187 is 63 in this case. Option. Okay. Clear है? Next question करते हैं. Next one, let Sx denote the sum of digits of a positive integer x. There is an integer n such that n plus s of n plus s of n that is equal to 2025. What is the sum of digits of n? 6, 9, 12 or 15 or more than one values are possible. So what should be the answer in this case? यहाँ पे Sx हमारा क्या है? Sum of digits of a positive integer x. Okay. And given है हमें कि n plus sum of digits of n plus s of n, यानी कि s of sum of digits of n, यानी कि sum of digits से हमें जो वैल्यू मिला, अब उसका sum of digits किया एक बार फर्दर, that sum is equal to 2025. So what should be sum of digits of n? यानी कि basically question is asking about Sn only, isn't it so? ओके, क्योंकि हमें Sn की वैल्यू एक बार, अगर ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में हमें Sn की वैल्यूज ही गिवन है. अगर हम Sn की वैल्यूज
यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन है, तो क्या वहां से हम एस ऑफ एस एन निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? थिंक अबाउट इट। अगर हम ऑप्शंस को यूज करते हैं लेट अस से, तो कैन वी फाइंड आउट एस एस एन? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि एस एन की वैल्यू हमें पता है ऑप्शन में। इनको ट्राई कर लेंगे, एस ऑफ एस एन मिल जाएगा। और एस ऑफ एस एन मिल गया तो क्योंकि सम हमें फिक्स है, सम फिक्स है, तो वहां से एन भी मिल जाएगा। तो डायरेक्टली वी कैन चूज ऑप्शन, डायरेक्टली ऑप्शन से जा सकते हैं। बस एक पंगा आएगा कि इफ वी आर गेटिंग वन यूनिक सॉल्यूशन आउट ऑफ दीज ऑप्शंस, देन स्टिल ऑप्शन ई इज ऑल्सो पॉसिबल कि मोर देन वन वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक है, इवन इफ वी आर फॉर एग्जाम्पल गेटिंग एक यूनिक वैल्यू आउट ऑफ ए बी सी डी, स्टिल दैट इज पॉसिबल कि इनके आउटसाइड भी कोई एक वैल्यू हो जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। सो दैट इज वन पॉसिबल केस, बट पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। ठीक है, सो वी आर गिवन एस एन एंड ऑल दीज केसेस। ठीक है, सो एन की वैल्यू भी मिल जाएगा वहां से, एस एन, एस ऑफ एस एन, और सम तो फिक्स्ड ही है, सम इज 2025। In first case, if Sn is equal to 6, S of Sn will also be equal to 6. सम तो 2025 है, so यहां से n क्या आ जाएगा? n will be 2025 minus 12, तो 2013। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? If n is equal to 2013, तो Sn in that case will be equal to 6 because 2 plus 0 plus 1 plus 3, so yes that is satisfying, यानी कि ऑप्शन A is getting satisfied। तो ये तो आंसर मिल रहा है हमको। 9 की बात करते हैं। If Sn is equal to 9, तो S of Sn will also be equal to 9। सम इज इक्वल 2025, तो n क्या आ जाएगा वहां से? n आ जाएगा 2025 minus 18, and hence that will be 2007। अगेन फॉर 2007 Sn क्या होगा? अगर हमारा n 2007 है तो 2 plus 0 plus 0 plus 7, Sn will be 9, यानी कि दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग। तो 6 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 9 भी सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर हमारा फॉर श्योर ई है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या ये क्लियर है? क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज मिल गई तो डेफिनेटली ऑप्शन ई विल बी द आंसर। डेफिनेटली मोर देन वन वैल्यूज आर पॉसिबल। क्वेश्चन इज फिनिश्ड। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ये क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल था, बट एक बार हमें डेफिनेशन समझना था और फिर क्वेश्चन में अल्टीमेटली एस एन की वैल्यूज ही तो गिवन है, तो डायरेक्टली ऑप्शंस को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, अगर 12 के लिए देखते हैं तो एस एन अगर हमारा इफ दैट इज इक्वल टू 12, फॉर 12 इफ एस एन इज इक्वल टू 12, देन एस ऑफ एस एन विल बी इक्वल टू 3, टोटल सम इज 2025, तो हमारा एन विल बी इक्वल टू 2010। बट फॉर 2010 एस एन विल नॉट बी इक्वल टू 12, बट दैट विल बी इक्वल टू 3। So this is wrong. This is not the solution. If we are taking Sn is equal to 15, so S of Sn will be equal to 6. Total sum is 2025. So n will be equal to 2025 minus 21, and 2004. And again for 2004, Sn will not be 15. So this is also wrong. So we have 6 and 9 are definitely, I mean, so possible cases, but 12 and 15 are not the possible cases. तो हमें दो numbers तो n मिल गए ऐसे, which are satisfying the condition. One n is 2007 and other number is 2013. Okay, is that clear? अब अगर मैं इसको एक्चुअल में सॉल्व ही करना होता तो कैसे सॉल्व करते? तब हालांकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, तो उसको भी समझ लेते हैं शॉर्ट में और फिर आगे अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? वी बीन गिवन, तो एग्जाम में करेंगे नहीं, करेंगे ऐसे ही जैसे अभी किया, ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ऐसा नहीं चाहिए था। तो एस एन प्लस एस ऑफ एस एन, दैट सम इज इक्वल टू 2025। ओके, सो टोटल सम आ रहा है 2025। नाउ एस एन इज नथिंग बट सम ऑफ डिजिट्स ओनली। सम ऑफ डिजिट्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? n is a basically n should be less than equal to 2025, बट अगर n इक्वल टू 2025 हो गया तो फिर Sn और S of Sn जीरो होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली n विल बी लेस देन 2025 फॉर श्योर। क्या ही क्लियर है? सो व्हाट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Sn अगर n हमारा 2025 से छोटा वैल्यू है? Sn का मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा, सम ऑफ डिजिट्स का मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा व्हेन डिजिट्स आर मैक्सिमाइज्ड, इजंट इट सो, एज हाई एज पॉसिबल। तो इन अ 4 डिजिट नंबर, if you have to maximize the sum of digits, तो these digits can be 9, और ये लास्ट वैल्यू हमारा 2 हो नहीं सकता क्योंकि 2025 से छोटा वैल्यू होना, सो दिस कैन बी 1, यानी कि एस एन का मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 27 plus 1 28, अदरवाइज एस एन विल बी लेस देन इक्वल टू 28। इज दैट क्लियर? फिर हमें एस ऑफ एस एन निकालना है। अगर एस एन इज लेस देन इक्वल टू 28, यानी कि एस एन की वैल्यू कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 1 to 28, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो फ्रॉम 1 to 28 किस नंबर के लिए हमारा एस ऑफ एस एन विल बी मैक्सिमम? फॉर विच नंबर एस ऑफ एस एन विल बी मैक्सिमम? तो एस ऑफ एस एन फॉर 28 विल बी 2 + 8 10, ठीक है, या तो 28 होगा। सिमिलरली अगर एस एन हमारा इक्वल टू 19 होगा तब भी एस ऑफ एस एन विल बी 10, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस ऑफ एस एन विल बी इक्वल टू 10, ठीक है, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 10। So maximum value of S of Sn is 10, maximum value of Sn is equal to 28, तो n will definitely be, by Sn का maximum value will be 28,
एस ऑफ एस एन का मैक्सिमम वैल्यू इज 10, तो एन विल बी लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन ही 2025 minus 28 minus 10. So that will be, n will be less than 1980, लेस देन क्यों बोल रहे हैं, ग्रेटर देन होगा, n बड़ा होगा इससे, क्योंकि हमारा जब एन मैक्सिमम होगा तब भी 28 होगा, एस ऑफ एस एन मैक्सिमम होगा तब भी 10 होगा। तो अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो एस एन और एस ऑफ एस एन को, भाई एन हमारा इक्वल टू क्या बन रहा है, 2025 माइनस एस एन माइनस एस ऑफ एस एन। सो बेसिकली भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दीज टू विल बी 38, उससे छोटा ही होगा। तो अगर 38 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 1987 आएगा, तो डेफिनेटली एन विल बी ग्रेटर देन 1987 और मे बी इक्वल टू एज वेल। इक्वल टू हो सकता है क्या, 1987 पे सम ऑफ एस एन क्या आएगा हमारा, 9 + 8 + 7 यानी 24 + 1 25, 25 इज एस एन और एस ऑफ एस एन इज 7, 25 + 7 32, सो डेफिनेटली इक्वल टू नहीं होगा, एन शुड बी ग्रेटर देन 1987। ओके, अब इस कह रहे हैं तुम्हें लिमिटेड वैल्यूज हैं फ्रॉम 1987 टू 2025, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच एन वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ओके, अब डेफिनेटली ये क्वेश्चन टिपिकल हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर एक बार फिर भी हम नुएंसेस और चेक कर लें कि देखो यहाँ पे और क्या किया जा सकता है जिससे कि हम क्वेश्चन को अपने लिए सिंप्लीफाई कर लें। नॉट टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो देखो एग्जाम में अगर ऑप्शन से हो जाएगा तो बेस्ट है, जैसे हमने किया इस क्वेश्चन को, बट अदरवाइज यू विल हैव टू स्किप इन एग्जाम। बट और क्या चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं कि हमारा n + एस एन प्लस एफ एस एन दैट इज इक्वल 2025, और 2025 इज बेसिकली दिस इज डिविजिबल बाई 9, क्योंकि सम डिजिट्स यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 + 2 + 2 9, तो डिविजिबल बाई 9, दिस इज डिविजिबल बाई 9। ओके, सो अगर हमारा इफ सम ऑफ ऑल दीज, अगर हमारा इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 9, तो डेफिनेटली द सम ऑफ डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। भाई डिविजिबिलिटी बाई 9 का कंडीशन क्या है, अगर हमारा नंबर डिविजिबल बाई 9 है तो सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, और अगर सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9 देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 9, इजंट इट सो? बट फॉर श्योर तो नहीं कह सकते, हो सकता है कि हमारा n इज नॉट डिविजिबल बाई 9, बट स्टिल टोटल सम ऑफ n प्लस एस एन प्लस एफ एस एन दैट इज कमिंग आउट टू बी डिविजिबल बाई 9, ये तो हो सकता है, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। बट लेट अस से किसी भी क्वेश्चन के लिए ये तो पता ही होगा कि अगर हमारा n इज लेट अस से 24, ठीक है, सो 24 सम ऑफ दिस क्या आएगा, एस एन विल बी इक्वल टू 2 + 4 6, और n को डिवाइड करोगे 9 से जो रिमाइंडर देगा, दिस इज गिविंग रिमाइंडर इक्वल टू 6। सिमिलरली एस एन को डिवाइड करोगे 9 से तो रिमाइंडर विल बी सेम, रिमाइंडर वैल्यूज विल बी सेम, ठीक है, तो n डिवाइडेड बाई 9 if that is giving some remainder, so that will be same as sum of digits of n divided by 9 giving remainder, and that will also be same as s of sn divided by 9 जो रिमाइंडर देगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और अगर ये बात क्लियर है तो वी कैन एज्यूम कि इफ n इज इक्वल टू 9 का सम मल्टीपल प्लस सम रिमाइंडर r, तो एस एन विल बी इक्वल टू 9 का सम अदर मल्टीपल प्लस रिमाइंडर सेम रिमाइंडर r, एंड s of sn will be equal to 9 का सम अदर मल्टीपल plus remainder r. Now if you are adding all these three, so sum of them is some multiple of 9 plus 3 times r. But since the sum is also a divisible by 9, so 3r must be either equal to 9 or equal to 0 or equal to 18. भैया 0 होगा या 9 होगा या 18 होगा, यानी कि in that case remainder will be equal to either equal to 0 or 3 or 6. So n must be a multiple of 9 plus either remainder will be 0, यानी कि in that case n will be a multiple of 9, or remainder will be 3 or remainder will be 6, यानी कि this implies that n must be multiple of 3. Okay, now this is up to you to do the exercise, क्योंकि अब लिमिटेड वैल्यूज भी पॉसिबल है हमारे पास, n must be a multiple of 3। तो एक वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, टू वैल्यूज वर 2013 2007। ओके, ठीक है, सिमिलरली हमें टू और वैल्यूज मिलेंगी। अब वो अगर एक्सरसाइज करना हो अपने एंड पे कर सकते हो, अदरवाइज बेसिक अप्रोचेस हमने देख लिए, रिवाइज कर लिए कुछ कुछ चीज़ें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिकॉज इतना लंबा प्रोसेस तो नहीं करेंगे एग्जाम में ऑब्वियसली, does not make sense. Next question. A concert organizer has priced tickets at rupees 200 at which he expects an average occupancy of 800 people. So if he has ticket prices at rupees 200, then occupancy will be of 800 people.
Market research indicates a linear demand curve. For every rupees 10 increase in the ticket price, the occupancy drops by 20 people. So if we let us say increases price and now price is 210 rupees, the occupancy will be 800 minus 20, 780. 20 से reduce हो जाएगा. प्राइस को 10 से इंक्रीज किया तो ऑक्यूपेंसी हमारा 20 से रिड्यूस हो जाएगा. द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्सर्ट इज फिक्स्ड एट ₹50,000. हाउएवर, a new entertainment tax rule states if the ticket price exceeds ₹250, a tax of 20% is levied on the total tax revenue collected. So what ticket price maximizes the organizer's net profit? ठीक है. So सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट हमारा आ कितना रहा है. ठीक है. इन जनरल केस बिकॉज कंडीशन क्या है, देखो ₹250 से लेसर हमारा टिकट प्राइस है और इफ टिकट प्राइस इज इक्वल टू ₹250 देन देयर इज नो टैक्स. इफ टिकट प्राइस is less than equal to ₹250, then there is no tax. If ticket price is greater than 250, then tax is 20% on total revenue. 20% of total revenue, not profit. 20% of total revenue is the tax. So we'll have to make two cases. First case will be when ticket price is less than equal to 250, and second case will be ticket price greater than 250. क्या ये clear है? Okay. So ये दो cases बनेंगे हमारे, है कि नहीं? ओके. तो फर्स्ट केस में कितना हमारा प्रॉफिट आने वाला है, रिवेन्यू क्या होगा, पहले जनरलाइज कर लेते हैं इस चीज को. तो आवर टिकट प्राइस कैन बी इंक्रीज्ड in multiples of 10. So we can say the ticket price can be 200 plus 10n, and occupancy is decreasing by 20 each time. So occupancy will be 800 minus 20n general term. So this will be total revenue 200 plus 10n into 800 minus 20n. This will be our total revenue. प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, हमें मैक्सिमाइज करना है ऑर्गेनाइजर्स नेट प्रॉफिट. So if ticket price is less than equal to 250, in that case profit will be, net profit will be equal to total revenue minus cost. Cost of fixed है ₹50,000. 200 plus 10n into 800 minus 20n minus 50,000. नो इधर ओपन दिस, या कुछ चीज़ें जो कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन ले लो. तो फर्स्ट ब्रैकेट से 10 कॉमन आ जाएगा, सेकंड से 20, तो 200 विल बी कॉमन, एंड इनसाइड द ब्रैकेट्स विल बी 20 प्लस n into 40 minus n and minus 50,000. Now since this part is fixed, so don't bother about this part. 50,000 तो fixed है, 200 is also fixed, so our only concern will be the values inside this bracket because this is not fixed. This is changing with value of n, isn't it so? तो बस इस पार्ट पे फोकस करना है. We basically have to maximize this part only. Don't bother about 50,000 क्योंकि वो तो कॉस्ट है, कॉस्ट फिक्स है हमारा, तो उसके लिए बॉदर नहीं करना. 200 भी फिक्स है तो उसके लिए बॉदर नहीं करना. वी ओनली हैव टू मैक्सिमाइज दिस पार्ट. 20% इंटू 40 माइनस एन, या तो AMGM अप्लाई कर दो कि ये दो टर्म्स हमारे, एंड इफ यू कैन ऑब्जर्व कि n का कोफिशिएंट दोनों केसेस में +1 ही है, तो प्लस n माइनस n. इफ यू आर टेकिंग सम, अगर इसको a मान लो इसको b मान लो, तो a प्लस b क्या है, a प्लस b फिक्स्ड है. 20 प्लस n प्लस 40 माइनस n, अगर ये ऑब्जर्व कर पाओगे तो फिर क्वाड्रेटिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सम हमारा a प्लस b का फिक्स्ड है 60 है. एंड इफ टू नंबर्स आर देयर जिनका सम फिक्स्ड है, तो प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, व्हेन बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, व्हेन बोथ a एंड b आर इक्वल, यानी कि व्हेन बोथ आर इक्वल टू 30. तो 20 प्लस n विल बी इक्वल टू 30, 40 माइनस n विल बी इक्वल टू 30, यानी कि n विल बी इक्वल टू 10. तभी वैल्यू मैक्सिमम आएगा. तो वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है n इक्वल टू 10 पे, है कि नहीं. n इज इक्वल टू 10 पे वैल्यू हमारा मैक्सिमम आ रहा है. ओके. और n इज इक्वल टू 10 कब होगा, व्हेन आवर टिकट प्राइस विल बी 200 प्लस 100. 200 प्लस n इज इक्वल टू 10 रखोगे तो 200 प्लस 10 इंटू 10, तो टिकट प्राइस विल बी 300. बट अभी हमने कंडीशन क्या निकाला, टिकट प्राइस शुड बी लेस देन इक्वल टू 250. टिकट प्राइस शुड बी लेस देन इक्वल टू 250. ओके. तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक बन रहा है बेसिकली, बिकॉज अल्टीमेटली कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस n स्क्वायर होगा. तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक विद द मैक्सिमा, एंड दैट मैक्सिमा इज अकरिंग एट ₹300 when ticket price is equal to ₹300, isn't it so?
या फिर अगर n पे सिर्फ बात करेंगे, सो एट n इज इक्वल टू 10, और n इज इक्वल टू 10 आने का मतलब ही यही है कि ₹300 इज द टिकट प्राइस, n इज इक्वल टू 10 पर मैक्सिमम आ रहा है। बट हम n इज इक्वल टू 10 नहीं ले सकते बिकॉज हमारा टिकट प्राइस शुड बी लेस देन इक्वल टू 250, यानी कि n हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 5। तो थिंक अबाउट इट, n कैनॉट बी इक्वल टू 10, बट बिफोर n इज इक्वल टू 10 द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, इजंट इट सो? तो n इज इक्वल टू 5 पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि उससे बड़ा वैल्यू अभी हम ले नहीं सकते उसके बाद के लिए हमारा, क्योंकि टोटल रिवेन्यू का फंक्शन चेंज हो जाएगा। भाई टोटल रिवेन्यू तो सेम रहेगा, बट रिवेन्यू में से टैक्स कटेगा, उसके बाद में जो बचेगा उससे तो प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना अल्टीमेटली अपना। तो दैट इज वाई 5 के बाद में, यानी कि टिकट प्राइस ग्रेटर देन 250 पे हमें अपना फंक्शन फिर से एक बार बनाना पड़ेगा। तो कैन यू अंडरस्टैंड दैट मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी एट टिकट प्राइस इक्वल टू 250, बिकॉज 250 तक हमारा टोटल रिवेन्यू तो लगातार इंक्रीज कर रहा है। एन इज इक्वल टू 5 तक टोटल रेवेन्यू लगातार इंक्रीज कर रहा है, एन इज इक्वल टू 1 पे लेसर होगा, 2 पे हायर होगा, 3 पे हायर, 4 पे हायर, 5 पे हायर, वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो कि 20 इंटू 40 दैट इज 800। नाउ इफ वी पुट एन इज इक्वल टू 1, 21 इंटू 39 दैट विल बी हायर, भाई दैट विल बी 780 प्लस 21 801, फिर 22 इंटू 38 दैट विल बी इवन हायर 760 प्लस 76 दैट विल बी 836, इजंट इट सो? तो सो ऑन हमारा वैल्यू कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक हमारा एन इज इक्वल टू 5 होगा। एन इज इक्वल 10 तक भी इंक्रीज करेगा, बट हम एन इज इक्वल 10 नहीं ले सकते बिकॉज आफ्टर एन इज इक्वल टू 5, यानी कि आफ्टर टिकट प्राइस बिकम्स इक्वल टू 250, इफ वी आर इंक्रीजिंग फर्दर टिकट प्राइस देन देयर विल बी फर्दर टैक्स, और उस टैक्स की वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो तो सेम रहेगा, बट हमारा जो नेट प्रॉफिट है दैट विल डिक्रीज। सो दैट इज वाई उसके बाद में हमें अपनी वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। सो टिल लेस देन इक्वल टू 50 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इज एट, मैक्स प्रॉफिट इज एट टिकट प्राइस इक्वल टू 250। ओके, क्या है क्लियर है? और वो प्रॉफिट का वैल्यू क्या आएगा, एन इज इक्वल टू 10 पुट कर दो, सो दिस विल 200 इंटू 30 इंटू 30 minus 50,000. So this is 900 into 20, 200. So 900 200 will be 1,80,000 or minus 50,000 1,30,000. हो क्या कर रहे हैं भाई, एन स्कोर 5 आई तो रखना है, एन स्कोर 10 नहीं रखना है, क्या कर रहे हैं? एन स्कोर 5 तो रखना है, क्योंकि 10 नहीं रख सकते। सो एन स्कोर 5 पे दिस विल बी 200 इंटू 25 इंटू 35, so that will be 750 and 175, so 925. ठीक कर रहे हैं ना, 185,000 50,000 135,000 हो जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, 25 इंटू 35 विल बी 750 125 875, तो 17500 125,000 होगा, प्रॉफिट हमारा विल बी 125,000। दिस विल बी मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन टिकट प्राइस इज इक्वल टू 250। अब इसके बाद में हमें दोबारा से अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा कि अब क्या करेंगे, 20% टैक्स विल बी लिविड, तो विल बी मल्टीप्लाइंग दिस रेवेन्यू बाई 0.8, बिकॉज 20% तो टैक्स में ही चला जाएगा। तो नाउ प्रॉफिट विल बी 0.8 into this value, 200 plus 10, 800 minus 20 and minus 50,000. नाउ अगेन फंक्शन तो सेम ही बनेगा, तो मैक्सिमाइज भी सेम ही वैल्यू पे होगा बिकॉज बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो अगेन मैक्सिमाइज किस पे होगा, एन इज इक्वल टू 10 पे मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि फंक्शन सेम ही है, बस 0.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज द डिफरेंस। तो हमारा नेट प्रॉफिट चेंज हो जा रहा है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा प्रॉफिट का, देख लो, एन इज इक्वल टू 10 पुट कर दो, तो दिस विल बी 0.8 इंटू 300 इंटू 600 minus 50,000. So this is 6 into 3 18 followed by 4 zeros, 1,80,000 into 0.8, so 1,44,000 minus 50,000, so this will be 94,000. So maximum profit comes out to be equal to 94,000 when ticket price is greater than 250, and when ticket price is less than equal to 250, maximum profit is 1,25,000. So answer will be maximum profit is at rupees 250. क्या ये clear है?
ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो है, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस हमारे बन रहे थे, व्हेन टिकट प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 50 एंड व्हेन टिकट प्राइस इज ग्रेटर देन 250, तो दो हमारे केसेस बन रहे हैं, दैट इज वाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझनी है, जो समझना इंपॉर्टेंट है कि वी आर लिविंग अ टैक्स ऑफ 20% ऑन द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड व्हेन टिकट प्राइस एक्सीड्स ₹250। ऑप्शंस को अगर हम ऑब्जर्व करें, ऑप्शंस हमारे क्या हैं, 240, 250, 260, 270, 280 एंड 300। ठीक है, सो आफ्टर 250 मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 300 आ रहा है, क्योंकि 250 के बाद देयर इज अ सडन टैक्स ऑफ 20%। तो रिवेन्यू, इफ इनिशियल रिवेन्यूज लेट अस से आर, ठीक है, दैट इज इन फंक्शन, तो आर अ फंक्शन इज देयर, बट जैसे ही तुम्हारा 250 से बड़ा वैल्यू आएगा तो यू आर मल्टीप्लाइंग बाई 0.8। इज दैट इट सो? ठीक है, अब चीज़ें मैक्सिमाइज हो रही हैं हमारी, और 50,000 तो कॉस्ट तो फिक्स है, तो कॉस्ट के लिए हमें बॉदर करना ही नहीं, हमें सिर्फ बॉदर किसके लिए करना है, हमारे रिवेन्यू के लिए, बिकॉज कॉस्ट इज फिक्स्ड एनीवे। तुम्हारा टिकट प्राइस 240 हो, 250 हो, 300 हो, 500 हो, कुछ भी वैल्यू हो, कॉस्ट तुम्हारा फिक्स्ड है, तो यू आर ओनली बॉदर्ड अबाउट द टिकट प्राइस, द टोटल रिवेन्यू इनिशियल इज 200 प्लस 10n इंटू 800 माइनस 20n, विच बिकम्स, क्योंकि हम 10 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे, 200 कॉमन ले लिया, तो इनसाइड ब्रैकेट 20 प्लस n इंटू 40 माइनस n, तो यू आर ओनली बॉदर्ड अबाउट दिस पार्ट। ओके, सिंपली बस इतना ही देखना है, वो लंबे तरीके से हमने समझा, सारी बातों को समझा, बट अल्टीमेटली में पता ही है 50,000 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दैट इज फिक्स्ड इन ऑल केसेस। नाउ फर्स्ट केस में व्हेन टिकट प्राइसेस लेस देन इक्वल टू 50, तो सिंस सम ऑफ 20 प्लस n 40 माइनस n दैट इज फिक्स्ड, तो मैक्सिमाइज कब होगा, n इज इक्वल टू 10 पे, और 10 पे मैक्सिमाइज हो रहा है, तो तब तक तुम्हारा द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, उसके बाद में दिस इज टेकिंग अ डिप आफ्टर n इज इक्वल टू 10। तो फॉर सिंस वी कैन नॉट टेक n ग्रेटर देन 5 फॉर श्योर, बिकॉज देन वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा, देन दिस विल बी 200 इंटू 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस n इंटू 40 माइनस n, तो बेसिकली दिस विल बिकम 160 इंटू 20 प्लस n इंटू 40 माइनस n। इस पार्ट में हमारा मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट n इज इक्वल टू 5, क्योंकि लगातार तब तक इंक्रीज ही कर रहा है, तो जहां पे हमने रोक दिया दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू, so n is equal to 5 by this will be maximum, so that will be equal to 200 into 25 into 35. In this case maximum value at n is equal to 10, because function वही है, बस बाहर मल्टीप्लाई हो जा रहा है 0.8 से, तो 160 into 30 into 30। ओके, अब चाहो तो रेशियो ले लो इनका स्टेट, अभी ठीक है, मैं एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं है, रेशियो लेके काम चला सकते हो, दिस इज 4, दिस इज 5, नाउ दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 6, this is 7, this is 7 into 25 175, this is 24 into 4 96, तो क्लियरली दिस इज विनिंग, दिस इज हाइयर, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा हाइयर होगा, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, और इससे इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हमारा जो कॉस्ट है दैट इज फिक्स्ड, अगर कॉस्ट वेरिएबल होता तो उसको भी हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ता, और तब चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती इस क्वेश्चन में, बट सिंस और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, तो इवन इफ यहाँ पे दो कंडीशंस आ रही हैं, दो डिफरेंट हमारे ग्राफ आ रहे हैं, बट स्टिल यू कैन सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन फॉर यू, इज दैट क्लियर? और सिंप्लीफाई कर पाओगे, ऐसे कर पाओगे, तब तो डुएबल है एग्जाम में, अदरवाइज दिस इज टेकिंग मोर टाइम, एंड इवन इफ यू आर डूइंग इट, यू शुड बी डूइंग इट टुवर्ड्स द लेटर पार्ट, टुवर्ड्स द एंड। ओके, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Augus's civilization uses a calendar where a week has 8 days, a month has 34 days, and a year has 10 months. However, every fourth year is an epic year, having one extra day in the last month. Every 100th year is not an epic year unless it is divisible by 400. If day 1 of first month of year 1 was the first day of the week, day 1, what day of the week is the first day of the third month of the year 105? So what will be our answer in this case? Pause this video, understand the concept. सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ये कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली एक हमारा, ठीक है। सो क्या हमारा आंसर होगा इस केस में? So there is a civilization, Agassi civilization, they use a calendar where a week has 8 days, okay, a month has 34 days, and a year has 10 months. And every fourth year is a epic year, basically a leap year, having one extra day in the last month. Every 100th year is not a epic year unless it is divisible by 400. Okay. If day 1 of the first month of the year 1 was the first day of the week, day 1, so what day of the week is the first day of the third month of the year 105? So we have year 1
and the question is asking about year 105, month 3, day 1. So if we first go to first, by year 1 का day 1 is given, day 1 month 1, तो year 105 का day 1 month 1 पहले कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, ठीक है, day 1 नॉट day 1 एज सच, वो day 1 नहीं होगा, क्या वैल्यू होगा उसका, day 1 होगा, day 2 होगा, तो दैट इज डिफरेंट, बट द पॉइंट इज कि day 1 month 1 पे जंप करते हैं ईयर 1 से ईयर 105 पे, तो कितना जंप आया हमारा 104 ईयर्स का. हर ईयर में क्या डिफरेंस आ रहा है, एवरी ईयर हैज 34, एवरी मंथ हैज 34 डेज एंड 10 मंथ्स, तो एवरी ईयर हैज 340 डेज एंड एपिस ईयर हैज 341 days and every week has 8 days. तो if every week has 8 days, तो कितने ऑड डेज आ रहे हैं, कितने डेज हमारे बच रहे हैं, 340 डिवाइड बाई 8 करो, कितना रिमाइंडर आएगा, 320 तो पूरा ही जा रहा है, 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो 4 एक्स्ट्रा डेज आर देयर प्लस 4 एंड फॉर एपिस ईयर दिस विल बी प्लस 5, दिस विल बी प्लस 5. नाउ आउट ऑफ 104 डेज फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 104, टोटल 104 तक हमने देखा कितने ईयर्स हमारे होंगे विच विल बी एपिस ईयर, कितने ईयर्स नॉर्मल ईयर होंगे. भाई नॉर्मल ईयर्स में डिफरेंस क्या आएगा, नॉर्मल ईयर्स में डिफरेंस विल बी ऑफ 4 डेज, फॉर एपिस ईयर डिफरेंस विल बी 5 डेज. तो या तो सबके लिए 4 डेज ले लो और फिर देख लो कितने एपिस ईयर है, उनके लिए +1 कर दोगे, टोटल 104 ईयर्स तो है ही है, तो 104 इंटू 4, दिस विल बी डिफरेंस ड्यू टू एक्स्ट्रा डेज, क्योंकि एवरी ईयर ऐसे 4 डेज, एपिस ईयर्स में क्या है 4 डेज तो ही है, 1 एडिशनल ईयर इज 1 एडिशनल डे इज देयर, ठीक है. तो एपिस ईयर्स कितने आने वाले हैं, एपिस ईयर विल बी ईयर 4, year 8, year 12, year 16 and so on, so all multiples of 4 till year 104 which is also multiple 4, total 26 हो गया. बट बीच में year 100 will not be एपिस ईयर, तो -1 करोगे, 25 will be एपिस ईयर्स, ओके क्लियर है. तो +25 एपिस ईयर्स के लिए, और एवरी एपिस ईयर हैज 1 एक्स्ट्रा डे, 25 इंटू 1, टोटल हो गया हमारा 104 इंटू 4 प्लस 25 इंटू 1, और अल्टीमेटली हमें डिवाइड क्या करना है, रिमाइंडर 8 से ही निकालना है, तो 104 इंटू 4 दैट इज 416 प्लस 25, तो 441 being divided by 8, remainder comes out to be equal to +1, remainder comes out to be +1, यानी कि 1 डे का जंप आएगा. तो ईयर 1 ऑफ मंथ, डे 1 ऑफ मंथ 1 ऑफ ईयर 1, दैट इज डे 1, दैट इज डे 1. तो डे 1 ऑफ ईयर 105 ऑफ मंथ 1 क्या होगा, दिस विल बी 1 का जंप होगा, सो इफेक्टिवली दिस विल, इफ दिस वाज डे 1, तो दिस ईयर विल बी डे 1 +1, यानी कि दिस विल बी डे 2, ओके. तो ईयर 105 में मंथ 1 में डे 1 इज डे 2, इट इज कॉल्ड डे 2. मंथ 2 में क्या होगा, क्योंकि एवरी मंथ हैज 34 डेज, अ मंथ हैज 34 डेज, तो डिवाइड बाई 8 करोगे, यानी कि 2 डेज एक्स्ट्रा, तो 4 वीक्स एंड 2 डेज, तो 2 डेज का जंप लेगा. तो मंथ 2 में विल हैव डे 2 प्लस 2 डेज, तो डे 4, मंथ 2 का फर्स्ट डे विल बी डे 4, एंड सिमिलरली मंथ 3 का फर्स्ट डे विल बी डे 4 + 2, डे 6. तो आंसर विल बी डे 6, ऑप्शन डी. आंसर हमारा हो जाएगा डे 6, दैट इज ऑप्शन डी. क्या ये क्लियर है, ओके. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन. आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी. फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. Also give a feedback in the comment section. That's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.